وادی کشمیر اور خطہ جناب کے بیشتر سرمائی زونز میں آج اسکول دوبارہ کھل گئے ہیں۔ لگ بھگ 2.5 برس کے بعد بچے اسکولوں کی جانب رواں دواں نظر آئے۔ اسکولوں میں آج تہوار جیسا ماحول تھا۔ بچے اور اساتذہ کافی خوش نظر آئے۔ دیکھیے ایک رپورٹ۔ کشمیر کی سڑکوں پر دوڑتی اسکولوں کی گاڑیاں، بستے لیے بچے، کچھ وردی پہنے اور کچھ بغیر وردی کے۔ اسکولوں میں تہوار جیسا ماحول۔ اساتذہ مٹھائیاں لے کر گیٹ پر بچوں کے خیر مقدم کے لیے قطار میں۔ ایسے ماحول میں تو بڑے بزرگوں کا بھی اسکول جانے کا من کرتا ہوگا۔ کوٹھی باغ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سری نگر میں خود ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن بچوں کے خیر مقدم کے لیے بیٹھے تھے۔ یہاں کووڈ SOPs کا بھی پورا خیال رکھا جا رہا ہے۔ خود بچے بھی ایسا انتظام دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ just so shocked, سارے ایسے ویلکم کے لیے آئے ہوئے۔ عادت نہیں رہی نا اب اسکول جانے کی، تو گھر پہ ہی بیٹھے تھے، تو اب میں جب اسکول آ رہی ہوں اور ایسا ویلکم ہو رہا ہے، I am feeling really happy۔ ہم بھی بہت زیادہ خوش ہیں۔ We are quite enthusiastic کہ ہمارے بچے پھر سے اسکول آئیں گے، پھر سے رونق ہوگی، ہم پھر سے خوش دلی سے پڑھائیں گے۔ We are very happy, very excited۔ آپ خود دیکھیں ہماری سیلیبریشن سے آپ کو خود پتہ ہی چلا ہوگا کہ ہم کتنے خوش ہیں۔ We welcome them wholeheartedly۔ بڑے اسکول تو بڑے اسکول، پرائمری اور مڈل اسکولوں میں بھی ایسا ہی ماحول دیکھنے کو ملا۔ خیر مقدم کے بعد کلاس رومز میں فی الحال پڑھائی لکھائی سے زیادہ بچوں کو ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کا منصوبہ بھی دیا جا رہا ہے تاکہ بچے اسکول کے ماحول میں پھر سے ڈھل جائیں۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کہتے ہیں کہ فی الحال بچوں پر غیر ضروری دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ انسٹرکشنز ایشو ہو گئی ہے۔ پہلے ایک ہفتہ ہم ایسا رکھیں گے، یہی فیسٹو ماحول رہے گا۔ وی ول ڈیلے آور ایگزامز، وی ول جو ان کے بچوں کے ساتھ جو ہماری انٹریکشن ہوگی، ٹیچرس اور بچوں کی جو انٹریکشن رہی، دیٹ ول بی دا فرسٹ پرائیورٹی۔ ان کے ساتھ ہم گل مل جائیں گے۔ وی ول ٹیک دیئر، ان کا کیا رہا ہے ان 2.5 سال میں، ان کے کیا لرننگ آؤٹ جو گیپس رہے وہ کیسی رہی ہے، ان کا مینٹل سٹیٹس کیسا ہے۔ فون کے ساتھ آج 2 سال کے بعد ان کو ڈی ایڈکشن کرنی ہے۔ انیشیل انرشیا ہے بچوں اور ہم میں بھی، کیونکہ 2.5 سال کے بعد وی آر گیٹنگ انٹو اے مین اسٹریم۔ ڈیٹیل جو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہیں وہ ہم نے سرکولیٹ کی ہوئی ہے۔ تو ایسا ہی ماحول رہے گا 1-2 ہفتے، تاکہ وی آر ریڈی ود دا مین اسٹریم۔ پھر ہم ان کو یہ لرننگ گیپس کیسی کہاں پہ رہی ہیں ان پہ ہم ورک آؤٹ کریں گے، تاکہ جو ان کا جو یہ دس ایئر ول بی ایئر آف ٹرانسفارمیشن اینڈ ایئر آف ایکیڈمک ایکسلنس۔ کچھ نجی اسکولوں نے مرحلے وار اسکول کھولنے کا پلان ترتیب دیا ہے تاکہ ایک مشت ٹرانسپورٹ اور دیگر انتظامات پر دباؤ نہ پڑے۔ ان اسکولوں نے آج مڈل سطح سے اسکول شروع کیے اور اگلے ہفتے اس سے نچلی سطح کے طلبہ کے لیے اسکول کھولے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خوشی اور دھوم دھام کے نظارے صرف بڑے بڑے اسکولوں میں ہیں۔ ہم اس وقت کوٹھی باغ گرلز مڈل اسکول میں ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، کس طرح یہاں پہ ان کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اسکول کھلنے کے بعد اساتذہ کے لیے یہ ہوگا کہ بچوں کو جو فون کی لت لگی ہے، جسے ہم فون ایڈکشن بھی کہتے ہیں، اس سے بچوں کو کیسے باہر نکالا جائے۔ اسکول ایجوکیشن کی طرف سے ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ جو فون کی ایڈکشن اس دوران ان بچوں کو لگی ہے کووڈ کے دوران، اس سے ان کو باہر نکالنے کے بھی انتظامات کیے جائیں، اور یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ جہانگیر عزیز کے ساتھ شبیر احمد، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر تصدق حسین میر نے کہا کہ کسی بھی اسکول کو سرپرستوں سے اضافی فیس لینے کی اجازت نہیں رہے گی۔ سرپرستوں کی شکایات کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تصدق حسین نے کہا کہ انہیں بھی چند شکایتیں موصول ہوئی ہیں اور 1-2 دن میں اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ بعض والدین کے مطابق اسکول والے غیر منصفانہ طور پر ٹرانسپورٹ فیس کی بھی مانگ کر رہے ہیں۔
कल ही मेरे जहन में ये बात, हमारे कुछ पेरेंट्स ने मेरे साथ ये बात की, तो कल 4 बजे हम प्राइवेट स्कूल, इनकी एक एसोसिएशन है जिनके प्रेसिडेंट है, वी आर हैविंग ए मीटिंग विद देम कल 4 बजे। उनके साथ हम ये सारे मसले तय करेंगे। हमने पहले उनको कहा हुआ है कि वी शुड नॉट फोकस ऑन इस टाइम मनी या उस पे, दैट शुड नॉट बी द इम्पेडिमेंट टू नॉट टू कम टू द स्कूल। तो इस पे हम कल 4 बजे हमने उनके साथ मीटिंग रखी हुई है। दे आर ऑल्सो पॉजिटिव ऑन किस स्कूल, कोई इंडिविजुअल स्कूल ने ऐसा किया होगा, बट वी विल रिजॉल्व दिस इशू आल्सो। बानीपुरा में स्कूल खुलने के पहले दिन जश्न का माहौल रहा। उधर सरहदी इलाके में स्कूल खुलने का पहला ही दिन कंफ्यूजन का शिकार हो गया। गुरेज तालीमी जोन में आज कुछ स्कूल खुले, तुलैल समेत दीगर इलाकों में ज्यादातर स्कूल बंद रहे। बर्फ से ढके इलाकों में स्कूल खोलने के हवाले से मकामी इंतजामिया को फैसला लेने की खबर आने के बाद तजब्जुब पैदा हो गया। एक और वजह यह बताई जा रही है कि गुरेज के ज्यादातर असातिज़ा और तलबा बानीपुरा में दरमानदा हैं। इस वजह से इलाके में आज मुकम्मल तौर से तालीमी सरगर्मियां शुरू न हो सकी। गुरेज सड़क दिसंबर से बंद पड़ी है। खराब मौसम के चलते फ़ज़ाई सर्विस भी मुतासर है। साबिक़ रुकन असम्बली नज़ीर गुरेजी ने इस मामले पर इंतजामिया की नुक्ताचीनी की। डीसी का कहना है कि नासाजगार मौसमी हालात की वजह से सड़क से बर्फ हटाने का काम और फ़ज़ाई सर्विस मुतासर रहे। कुछ दिनों में दरमानदा असातिज़ा को एयरलिफ्ट किया जाएगा। स्कूलों में अभी तक जो है ना ही स्टूडेंट्स पहुंच सके ना मदारिस पहुंच सके। तो मेरी गुजारिश होगी, अगर गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं दे सकती है तो क्या वजह है कि लोगों को आज पैदल भी जाने से मना किया जा रहा है? क्या आज तक लोग पैदल नहीं चलते थे? आज कब से हमने हेलीकॉप्टर सर्विस जो है पिछले 5-6 साल से शुरू की है। इससे पहले तो लोग पैदल ही जाते। देखें, गुरेज में ये इशू रहा कि कुछ जगहों पे स्कूल्स जो वहाँ प्रॉपर्ली टीचर्स नहीं पहुँच पाए क्योंकि जो रास्ता है वो बंद रहा है। पिछले आप देख सकते हैं 20-25 दिनों से चॉपर भी वहाँ पे फ्लाई नहीं कर पाया है और मौसम ऐसा नहीं रहा कि वहाँ पे जो क्लियरेंस है वो कंप्लीट की जा सके। डेली वहाँ पे क्लियरेंस करनी पड़ रही है। डेली वहाँ पे शाम को या तेज़ हवाओं की वजह से या बर्फबारी की वजह से दोबारा से रास्ता क्लोज हो जाता है। तो वो दिक्कत हमारे सामने आ रही है। बट आने वाले 3-4 दिनों में जो वेदर प्रेडिक्शन है वो थोड़ी बेहतर है और हम कोशिश करेंगे। और इसमें ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट दिया गया है, चॉपर सर्विसेज एक्स्ट्रा दी गई हैं। तो उन सब मदद से हम लोग वहाँ पे टीचर पहुँचाने में 3-4 दिन में मुझे उम्मीद है कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। वादी में स्कूल खुलने पर बच्चों का शानदार इस्तकबाल किया गया। इसके बावजूद टंगमर के काजीपुरा में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ थी। 1979 में कायम किए गए इस स्कूल के लिए मुनासिब इमारत का फुकदान है। ये स्कूल मुतल्लिका हुक्काम की नज़रों से ओझल रहा है। यहाँ मौजूद खस्ता हाल इमारत 2016 में बर्फबारी की वजह से गिर गई थी। आज तक स्कूल को नई इमारत नसीब नहीं हुई है। यहाँ 40 बच्चों के लिए सिर्फ एक कमरा है। आज स्कूल खुले या हमारे लिए बिल्डिंग नहीं, ये बिल्डिंग नहीं, यहाँ टूटी है बिल्डिंग थी। एक गवर्नमेंट को बोली एक बिल्डिंग बनाओ। यहाँ 5वीं क्लास तक यहाँ एक ही कमरे में बैठ। यहाँ पर बिल्डिंग कोई भी नहीं है, एक कमरा है, हम उसी में पढ़ते। जब बारिश होती है, बर्फ़ होती है, यहाँ पर हमारी दिक्कतें होती। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं एक बिल्डिंग हमें बना कर दे दे। हम आज पहली बार आए स्कूल 2-2.5 साल के बाद। यहाँ पर बिल्डिंग ही नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं हमें नई बिल्डिंग बना। दावे कर रहे हैं कि तालीमी ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है, वही ये तो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लग जाता है फिर गवर्नमेंट के उन खोखले दावों पर। प्राइमरी स्कूल काजीपुरा, हमारी डिमांड यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कम इस यहाँ की तरफ तवज्जो दी जाए और यहाँ पे एक नई बिल्डिंग कायम की जाए। तो मैंने ज़ाडियो साहब से बात की है, वो कल मैं उसको भेज रहा हूँ वहाँ पर, वो मुझे फैक्चुअल रिपोर्ट देगा क्या मसला है, फिर देखेंगे इंशाल्लाह क्या प्रॉब्लम है उनको, दैट विल बी एड्रेस्ड। सरहदी इलाके उड़ी में भी आज स्कूल खुलने पर तलबा का शानदार इस्तकबाल किया गया। हिंद पाक के बीच फायरबंदी माहदे की पासदारी करने के फैसले के चलते सरहदी इलाके के तलबा ज़्यादा खुश हैं। बार बार की गोलाबारी से इन तलबा की तालीम भी काफ़ी मुतासर हो रही थी। आज कई सरहदी इलाकों के स्कूलों में तलबा की खासी तादाद ने स्कूलों का रुख किया। तलबा और असातिज़ा उम्मीद कर रहे हैं कि सरहद पर अमन कायम रहेगा और स्कूल बिला खलल के चल पाएंगे।
चाहते हैं कि उड़ी में खुसूसन इस बॉर्डर इलाके में ये जो अमन अमान की फिजा है ये बरकरार रहे और आइंदा भी बच्चों को और मुलाजमीन को, टीचर्स को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को काम करने के हवाले से एक फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर मैसर हो। हमें बहुत खुशी है कि आज हम खुसूसी तौर पर मतलब यहाँ एक तरफ से कोविड के हवाले से, दूसरी तरफ से सीज फायर के हवाले से बहुत मतलब राहत महसूस कर रहे हैं। इस पुरअमन माहौल में अपने बच्चों को स्कूल में देख रहे हैं। आज हम 2 साल के बाद स्कूल गए, हमें स्कूल जाके बहुत खुशी हुई और उससे बड़ी खुशी ये हुई कि हम सीज फायर में हम स्कूल गए और अब हम दोनों कंट्री से ही गुजारिश करते हैं कि इस सीज फायर को कंटिन्यू रखें ताकि हम चैन और आराम से स्कूल जा पाएं। जिला पुलवामा की अक्सर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों में लेक्चर्स की कमी से तलबा का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। चकोरा इलाके में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल का दर्जा 3 साल पहले बढ़ाया गया था, लेकिन आज भी यहां 12 लेक्चर्स के बजाय सिर्फ 3 ही तैनात हैं, जबकि साइंस जैसे अहम मजमून के लिए कोई लेक्चरर नहीं है। लोगों ने महकमे तालीम से अपील की कि इस हवाले से जल्द इक़दाम उठाए जाएं। चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा का कहना है कि लेक्चर्स की कमी को दूर करने के लिए हायर सेकेंडरी में आला तालीम याफ्ता टीचर्स की तैनाती अमल में लाई जाएगी। सेकेंडरी दी गई लेकिन यहाँ स्टाफ अवेलेबल नहीं है। यहाँ 12 स्ट्रीम है जिसमें आर्ट्स भी हैं, मेडिकल भी है, लेकिन यहाँ स्टाफ यहाँ खाली 3 लेक्चरर हैं। यहाँ बच्चों को वो सहूलियत नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। अपील कर खास कर एजुकेशन डायरेक्टर्स सह थन युकन दिन ध्यान या साने हायर सेकेंडरी स्कूलस कुन तुम वो ये रोल क्या ये मास्टर साहिबान बाकी पढ़ान क्या अच्छा सिर्फ कमी सिर्फ लेक्चरर तम गस वात। हमारा पीजी का टीचर है वो अगर कहीं मिडिल स्कूल में होता है या कहीं प्राइमरी स्कूल में होता है उसको हम डिप्लॉय करते हैं उस हायर सेकेंडरी में जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। तो वी आर ऑन इट and we are getting the requisition from the respective higher secondaries and we will deploy them in their respective subjects in the adjoining higher secondary schools. बांडीपुरा के संबल टैंगपुरा इलाके में एक ग्राम सभा मीटिंग के दौरान 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। तसादुम के दौरान एक सरपंच समेत 4 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ग्राम सभा के दौरान किसी बात पर हुए इख्तलाफ को लेकर 2 ग्रुपों में आपस में उलझ गए। जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में इख्तिदार में रहने के लिए मुनाफरत का माहौल पैदा कर रही है। वो बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा के गुपकार अलायंस से मुताल्लिक दिए गए बयान पर तबसरा कर रहे थे। राणा ने कहा था कि धोखा उन्वान से गुपकार अलायंस का वाइट पेपर झूठ पर मबनी है और ये इख्तिदार को हासिल करने की खातिर कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश है। यूक्रेन तनाज़े के लिए नेटो को जिम्मेदार करार देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने रूस की कार्रवाई का दिफा किया। फारूक अब्दुल्ला ने शालाबुग गांदरबल का दौरा करके सड़क हादसे में फौत हुए 2 भाइयों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। इख्तिदार के लिए तो वो लड़ रहे हैं ना, अगर वो लोगों को खरीद रहे हैं तो किस लिए खरीद रहे हैं? इख्तिदार के लिए तो खरीद रहे हैं। वो क्या कोई खुदाई काम के लिए खरीद रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? यूपी में क्या कर रहे हैं? 5 रियासतों में क्या कर रहे हैं? इख्तिदार के लिए लड़ रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? उनसे ये कहिए मेरी तरफ से कि जब वो किसी तरफ उंगली उठाते हैं तो वो 3 उंगलियां पीछे भी उनकी तरफ भी देखती हैं, उन उंगलियों को भी देखें। सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है पहले नेटो की है, क्योंकि नेटो को क्या चट्टी पड़ी थी जो रियासतें रूस के सरहदें बनाती हैं। रूस को डर लगा और लगेगा, और रूस ने उनसे कहा था, बार बार कहा था कि इस तंजीम को दूर रखें, मुझे कोई हमला नहीं करना मगर मुझे अपने वतन को बचाना है। अगर नेटो ने ये नहीं किया होता तो नहीं होता, यहाँ तक मसला नहीं पहुँचता। आज वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ के लोग ही तो मर रहे हैं, कितने लाखों वहाँ से निकल गए अपने घर छोड़ के।
इसका जिम्मेदार तो वही है जो आज बड़ा शोर उठा रहा है। उस वक्त कहाँ थे? अगर ये तो नहीं करते तो ये होता ही नहीं। देखिए यही तो मुसीबत है, वहाँ हिंदुस्तान के स्टूडेंट नहीं है, दुनिया भर के गरीब मुल्कों के लोग वहाँ या तो पढ़ रहे हैं, अलग अलग तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका हाल तो बहुत बुरा है। वो चिल्ला रहे हैं रोज़, वो अफ्रीका के हों, पाकिस्तान से हों, अफगानिस्तान से हो, दूसरे मुल्कों से हों, हिंदुस्तान से हैं, आज उनको निकालना मुश्किल हो गया। श्रीनगर जिला इंतजामिया ने श्रीनगर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा किया। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद और एसएसपी राकेश बिलवाल ने मिशन वापसी के बारे में बात करते हुए कहा कि मुनशियात फरोशों की जायदादों को भी एनडीपीएस के तहत जब्त किया जाएगा और इस पर अमल शुरू हो गया है। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने मुनशियात के इस्तेमाल को ख़त्म करने के लिए मिशन वापसी का आगाज़ किया है। डीसी श्रीनगर ने कहा कि मुनशियात मुतासरीन की सरकारी स्कीमों के तहत बाज़ाबातगिरी की जाएगी। उनका कहना था कि श्रीनगर में होने वाले 80% जराइम का ताल्लुक मुनशियात की लत से है। जो इसका पैडलिंग मैकेनिज्म है और जो कंजम्पशन आर्ट स्पोर्ट्स हैं उनको कंप्लीटली सर्वे कर लिया गया है और जो पीछे 2 दिन पहले कार्रवाई हुई है लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर रेड्स डाले गए और उस दौरान जो रिकवरी हुई है, उस दौरान जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल सामने आया है, उस सारे से फर्दर लीड्स मिली हैं और आगे आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाई पूरे ज़ोरों शोरों से जारी रहेगी, क्योंकि हम अपनी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता हुआ नहीं देख सकते। और इसमें ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, क्लियर हैं कि ये जो ड्रग एडिक्शन है इसको कम्प्लीटली ख़त्म करना है। कि सेक्शन 68F है हमारी नारकोटिक जो है एक्ट है, उसमें है कि अगर कोई प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज्ड फॉर दिस पर्पस या फिर उसके पैसे से कोई प्रॉपर्टी ली गई हो, वी आर स्टार्टिंग दैट ऑल्सो कि हम उसके अटैचमेंट का काम भी स्टार्ट हो रहा है। वी आर आइडेंटिफाइंग दोज प्रॉपर्टीज मूवेबल और इमूवेबल विच हैव बीन यूज्ड फॉर दिस पर्पस और जो उस पैसे से भी आई हैं, तो उनके ऊपर भी हम और रेवेन्यू ऑफिसर्स हमारा एक साथ इसमें काम होगा एंड वी विल इंश्योर कि वो सभी प्रॉपर्टीज एकदम हो जाएं। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पशवारी कुपवाड़ा का पुल 15 सालों से ज़ेरे तामीर है। पुल मुकम्मल न होने से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हाल ही में एक शख्स नाले में भी गिर गया था। पेश है याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। इस नाले को पार करने की कोशिश करने के दौरान इस शख्स के पानी के तेज बहाव में गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। जिला कुपवाड़ा में नाला केहमल पर लगभग 14 बरस से पुल का काम नामुकम्मल पड़ा है। पशवारी इलाके में लोग जान हथेली पर रखकर नाला पार करते हैं। नाले को पार करने के लिए आर्जी इंतजाम किया तो गया, मगर ये किसी भी वक्त बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू ने भी इस मसले को कई बार उजागर किया है, मगर शायद इंतजामिया किसी बड़े हादसे का मुंतज़िर है। ना यत लगो कदल युथी बह हावा तौर अपार यपोर अत फ्रस बहुत अमे फ्रस पे डुल बह सीधे दरियावस परेशानी मन जबरदस्त परेशानी यह कदल गो जल्दी जल्दी बन मेहरबानी कर करतो कह रफाकत ये जनाबलो ये प्रत वरी जमू जान गसान जाय जनाबलो निवान युथी दरिया फेरान तुथी कदल तसान नफर तसान जन तसान मोनी गसान बच गसान आमद जबरदस्त। लोगों का कहना है कि पुल न होने से यहाँ कई हादसा भी पेश आ चुके हैं। नामालूम वजूहात की बिना पर काम रुक जाने से लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जिला इंतजामिया भी अपने वादे वफा करने में नाकाम हुई है।
14 साल से बन रहा है। इसके ये 3-4 पिलर कंप्लीट हो गए हैं और इसका फर्श डालना बाकी है। जी साहब यहाँ पर 2 बार आए, उन्होंने हमें एश्योरेंस दे दी कि अब ये पुल जल्दी टाइम पर होगा, मगर जी साहब ने हमारे साथ वादा भी किया, मगर वो वादा कहाँ गया? 2012 पे गो ये बना, मतलब गवर्नमेंट 2-3 बदल, मतलब पतस गए ये मतलब कर जोर वोर और ठट सेंक बन, पर ये फर्श रूद इनकम्प्लीट जबरदस्त परेशान, ये फर्श मूजूब यूत परेशान, ये इलाका छन गसान। उधर डीसी कुपवाड़ा एतराफ़ कर रहे हैं कि पुल का काम 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से नामुकम्मल है। ताहम उनका ये भी कहना है कि अब दोबारा टेंडरिंग की गई है और जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। 14 साल नहीं बल्कि 10-12 साल से तो चल ही रहा है वो पुल, लेकिन फंड्स की वजह से वो जो है इनकम्प्लीट बीच में रहा, लेकिन बाद में JKPC ने उसका लैंग्वेजिंग में प्रोजेक्ट बनाया भी है, उसकी अप्रूवल भी आई है। अब 10 बार हमने उसकी टेंडरिंग की है, अब 11वीं बार जो है हमने उसका टेंडर किया है और हमें उम्मीद है कि 11वीं बार कुछ रिस्पांस बताया गया मुझे आज ही सुबह कि भाई उसमें कोई रिस्पांस आया है। उनको रास्ता है, बेशक वहाँ से 1.5 किलोमीटर उनको चलना पड़ेगा या कोई गाड़ी में जाना पड़ेगा, वो 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये बचाने के लिए ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगियों को नाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इज्तनाब करें। और लोगों को उम्मीद है कि इस मर्तबा इंतजामिया उनके साथ किए गए वादे को वफा करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू ने 2 बार इसी पुल की खबर यहाँ पर नशर की थी, जिसके बाद यहाँ के इंतजामिया ने यकीन दिलाया था कि 1 साल के अंदर अंदर इस पुल की तामीर का काम मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन 2 साल भी गुजर गए हमारी न्यूज़ को, लेकिन अभी तक ये पुल मुकम्मल होने का नाम नहीं रहा। उम्मीद यही की जा सकती है कि अब की बार इस बुजुर्ग शहरी जो वायरल हुए, जो यहाँ पर गिर पड़े, शायद इंतज़ामिया इसी को देखकर इस पुल की तामीर का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू करे। नेटवर्क की टीम के लिए याहिया। पुलिस ने आज प्रेस एन्क्लेव श्रीनगर में आरजी और यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के एहतजाज को नाकाम बना दिया। कई एहतजाजी मुलाजमीन को उस वक्त हिरासत में लेना पड़ा जब उन्होंने लाल चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश की। ये एहतजाज जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले मुनक्किद किया गया था। ये मुलाजमीन नौकरी की मुस्तकिली और कम अज़ कम उजरत एक्ट के नफाज का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना था कि अगर इनके मसाइल पर जल्द कोई फैसला न किया गया तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। जी बिल्कुल, जो पीडीडी के एम्प्लॉय है काफ़ी टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे थे और उस स्ट्रगल का नतीजा ये निकला कि उनका जो अपना एसआरओ 381 है उसके तहत उनके लिए जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई गई, हम उसका वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह हमें ये भी यकीन है जैसे एलजी साहब ने उनका मसला हल किया, आने वाले दिनों में जो यहाँ का 61,000 के करीब जो आर्जी मुलाजमिन है हमारा भी मसला हल होगा। मुख्तलिफ कॉलेजों के लोकल फंड्स मुलाजमीन ने कॉलेज नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के बैनर तले डिग्री कॉलेज बारामूला में पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाजियों ने महकमे हायर एजुकेशन में लोकल फंड मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि लोकल फंड मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत ने SRO 64, 303 और 520 जैसे कई पॉलिसी इक़दामात शुरू किए हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये पॉलिसियाँ सिर्फ कागजात तक महदूद हैं। हुकूमत की तश्कील करदा मुख्तलिफ कमेटियों की सिफारिशात को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर रोहित कंसल साहब और हमारी जो डायरेक्टर कॉलेज है डॉक्टर यास्मीन एशाही साहिबा गुजारिश करते हैं कि जो फैसला आइंदा आने वाला है आरजी मुलाजमीन के हक में, उसमें हायर एजुकेशन को इग्नोर न किया जाए, इनको भी इस पॉलिसी में लाया जाए ताकि इनके बच्चों का भी मुस्तकबिल रोशन हो जाए और कॉलेजों में जो अंडर स्टाफ मसला है वो भी हल हो जाए, बच्चों का दर्स तदरीस बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, और बच्चे अपने कामों में जो बच्चों को यहाँ पर तालीम दी जाती है उसमें इनका किरदार हो, और यही 25 साल से काम कर रहे हैं। महकमे जल शक्ति बडगाम में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन को उम्मीद है कि कल होने वाली मीटिंग में उनके हक में फैसला होगा। इन आर्जी मुलाजमीन ने महकमे जल शक्ति बडगाम में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया और नारेबाजी करते हुए अपने मुतालबात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिसके वो हकदार हैं इससे उन्हें महरूम रखा जा रहा है।
हमें यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने 2.5 साल ये जो हमारा मसला है 2.5 साल उन्होंने रीड किया है, पूरी उम्मीद है कि उसमें उन्होंने हर गोशे पे नजर डाली होगी। खुदा न खास्त अगर इस बारे में फैसला फिर भी हमारे हक में नहीं हुआ तो जो यहाँ पर बड़गाम में मशावरती कमेटी है जो प्रोग्राम देगी वो फिर हमारे ख्याल से रियासती सरकार और गवर्नर इंतजामिया के बस में रोकना मुश्किल होगा। किश्तवाड़ में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने मुस्तकिली का मुतालबा दोहराया। उन्होंने कहा कि आला हुक्काम को मेमोरेंडम पेश करने के बावजूद उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कल होने वाली मीटिंग में उनके हक में फैसला करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर वो सड़कों पर आएंगे। कठुआ में PHE के डेली वेज मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल को मजीद 48 घंटों तक बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है कि उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए। उन्होंने कहा कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में उनका एहतजाज एक तहरीक की सूरत इख्तियार करेगा। मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली कश्मीरी खिलाड़ी सादिया तारिक जम्मू पहुंच गई हैं। इस मौके पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वुशु एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने उनका इस्तकबाल किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए सादिया ने कहा कि लड़कियों को खेलकूद में आगे आना चाहिए। मॉस्को में वुशु में ये गोल्ड लेकर आई हैं। बहुत ही नाम इन्होंने जम्मू कश्मीर का रोशन किया है और बहुत सारी बच्चियां इंस्पायर हुई हैं। सादिया, कितना अच्छा लग रहा है इतना बड़ा नाम अपने माँ बाप के साथ साथ कश्मीर का रोशन करके जम्मू। बस मेरे को प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई कोचेस जिनने मेरे को इतना ज़्यादा वर्क हार्ड कराया। कुलदीप वंडू सर, थैंक यू सो मच। और मैं अपने कश्मीर में जो मेरे कोचेस उनको भी थैंक यू करना चाहती हूँ। लड़कियों के लिए क्या कहेंगे जो स्पोर्ट्स में उतरती नहीं है? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि एक बार ही ट्राई कर लो स्पोर्ट्स, एक बार ही, बहुत मजा आएगा। लाइफ बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच कुलदीप जी। इंस्पिरेशन बन चुके हैं आप भी, इतने बड़े कोच और इतनी लड़कियों को इंस्पिरेशन मिली, आपसे क्या कहेंगे? सर ये तो मुझे है कि टारगेट की जितना भी हमारे जो अभी मतलब एम है कि जितनी भी गर्ल्स है खासतौर पे यूनियन टेरिटरी में वो इस गेम की तरफ आ जाए और अपना देश का नाम रोशन करे। और मुझे पूरा आशा है कि जो हमारी रियासत की जो लड़कियाँ हैं वो बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है। अभी सादिया तारिक को आपने देखा, उससे पहले मुनाजा गाजी थी, रिया चिब है, बहुत सारी लड़कियां हैं कि जो, और बबलिन कोर है जिम्नास्टिक में, तो बहुत सारे लड़कियां हैं। मैं चाहता हूं कि लड़कियों को आना चाहिए स्पोर्ट्स की तरफ और अपना उनके बेस्ट वे है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करे और अपना नाम रोशन करे। आपके खुद के इस कदम से कितना बदलाव आएगा जम्मू कश्मीर में? मेरा तो टारगेट है मैम कि हमारा मेन जो ओलंपिक में गोल्ड लेना, एशियन गेम्स में गोल्ड लेना, और वो भी जम्मू कश्मीर से जाए। टारगेट मेरा वही है और मुझे भरोसा अपने बच्चों पर कि वो मेरा पूरा जो ड्रीम है वो पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। तो गुरु बिना गति नहीं होती है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश की और मेन जो इनका सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो, इनकी ये उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। मारूफ शिया रहनुमा मौलाना कल्ब जवाद ने कहा कि उनका देरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है। मौलाना कल्ब जवाद ने कहा कि कुछ मौलवियों और सियासी रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है, जिसके लिए हम वजीर अमित शाह और LG के शुक्रगुजार हैं। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि हमारा कदीम मुतालबा पूरा हो रहा है और जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड की तश्कील हो रही है। इसके लिए हुकूमत ने अभी 4 मेंबरों का इंतखाब किया है और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमें अपने मुल्क के जो हमारे सरबराह हैं जनाब मोदी जी साहब का, और हम शुक्रिया अदा करते हैं अमित शाह साहब के, जिनसे मुलाकात करके हम कश्मीर गए थे और उसके बाद वहाँ के जो मुतालबात थे वो हमने लाकर उनको पेश किए थे, जिसके बाद ये मुतालबा हमारा पूरा हुआ। राजनाथ साहब ने इसमें मेहनत की। इसी तरह से कश्मीर के जो गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनकी भी इस पर मेहनत शामिल है। अगरचे कुछ मौलवी इसके मुखालिफ रहे और कुछ सियासी लीडर्स के मुखालिफ रहे, और मुखालिफ वही हैं कि जिनका ज़ाती नुकसान हो रहा है और उनके ऊपर बेईमानियों का इल्ज़ाम है, लेकिन आवाम का ज़बरदस्त इस पर फ़ायदा है इंशाअल्लाह।
लेकिन अल्लाह का शुक्र कि वो नाकाम रहे और आवाम की वहाँ की फतह हुई है और हुकूमत ने हमारी बात को माना है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह इससे बेहतरीन काम अंजाम पाएंगे और जो बेईमानियाँ हैं वो ख़त्म होंगी, तो नाजायज़ कब्ज़े हैं वो ख़त्म होंगे। जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर जी अनवार ने स्कूल खोले जाने पर तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने स्कूल के ड्राइवर्स और दीगर मददगार एहलकारों का शुक्रिया अदा किया और उनके जज्बे को सलाम पेश किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अब बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए असातिज़ा पूरी कोशिश करेंगे। जिनको पिछले 2.5 सालों से तनख्वाहें नहीं मिली, मैं उनकी ग्रेटनेस को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आज जब उन्होंने देखा कि स्कूल खुल रहे हैं तो वो भूल गए कि हमारे घर में क्या हालत थी, हमें तनख्वाह मिली ना मिली, लेकिन आज वो ड्यूटी पे आ गए, बच्चों को लाया और आज जो है सब के दिल खुश हैं और एक खुशी का माहौल है। उन लोगों को सलाम जिन्होंने मुश्किलात के बावजूद भी ये एहसास जिंदा रखा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। ये साबित कर दिया कि हम बच्चों के ताल्लुक से जब हमारे जो खासकर फ्यूचर का मामला हो उस मामले में कोई कोताही नहीं होगी, उस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अनंतनाग के जोनल एजुकेशन ऑफिस को काडीपुरा से मुंतकिल करने के खिलाफ सैयद साहब काडीपुरा के लोगों ने खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इस दफ्तर पर इलाके के ताजर पेशा अफराद, ऑटो ड्राइवर व दीगर तालीम याफ्ता अफराद का रोजगार मुनहसर है। इसके बावजूद लोगों को एतमाद में लिए बगैर इंतजामिया ने ZEO ऑफिस को दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया। लोगों ने DC अनंतनाग से इस फैसले पर नजरसानी करने की अपील की। He has recommended that to the CEO for asserting the reports, लेकिन अभी तक CEO साहब ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। एंड हम जब उनके पास गए एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड दे आर सीक्रेटली ट्रांसफरिंग दीज ऑफिस टू अदर दूसरी जगह पे लेना चाहते हैं। एंड दैट इज़ माई रिक्वेस्ट, ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए और हमारा रोज़गार इस पे चलता है। हम एजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है और गवर्नमेंट आज बहुत बड़े इकदाम उठाती है ताकि यूथ जो है वो अपना रोज़गार कमा सके। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का शॉपकीपर्स, ऑटो ड्राइवर्स जितने भी हैं उनका रोज़गार इस पे चलता है। ज़िला पुलवामा के रहमो और मलहका इलाकों में नाला रमशी में कई माह से जारी गैर कानूनी माइनिंग से ज़रई और बागवानी शोबे को काफ़ी ख़तरा लाहक हो गया है। रहमो इलाके में रात और सुबह के औकात मशीनों के ज़रिए रेत, बाजरी और दीगर मटेरियल निकाला जा रहा है। इसकी वजह से रहमो और उसके मलहका देहात में कई आपाशी नहरें तबाह हो रही हैं। मकामी लोगों ने इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया से लेकर LG तक अपनी शिकायत दर्ज कराई हैं, मगर कुछ नहीं किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर पुलवामा का कहना है कि गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। JCB रात चलान बीच आतवार दो दोहस चलान सानिस यत नाले रोम कह अत प्रसाना वसाना तुलान कहन ये जन हत बद दरखास्त दी पुलिस DC साहबस तहसीलदार साहबस अत गोथी कोर यमो लैंड खराब ये जन आब जमीन खसान मकलो ये जमीन। फील्ड ऑफिसर्स को आज ही सुबह इनको फ़ोन किया है, उनको ये डायरेक्शन दी कि आप वहाँ पे जाइएगा और यू कीप ए क्लोज विजिल देयर। एंड जो ही उसको पता चलेगा कि यहाँ पर कोई मूवमेंट है लेट आवर्स भी है उस पर अकॉर्डिंग वो मुझे इंटीमेट करके इन केस आई विल नॉट अवेलेबल दिया वो मुझे इन्फॉर्म करके आई विल कॉन्टैक्ट द कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स, ताकि चूँकि जो लेट आवर्स है वहाँ पर बाकी डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होनी चाहिए, तो उनको साथ लेकर विल टेक एक्शन अगेंस्ट दोज। कुंजर ब्लॉक में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिहायशी मकानात तामीर करने के लिए गुज़श्ता कई बरसों से कोई पैसा वागजार नहीं किया गया। उन्होंने मुतल्लिका दफातर में अपने कागजात जमा किए थे, ताहम आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग टीन के शेडों में रहते हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि उनके मसाइल को जल्द हल किया जाए। मेहरबानी करा मेहरबानी गरीब शख्स मे मजूर बाग खानदार आरस मज कर काम तो बे जो बच होके ये शेडस मज गुजार कर मेहरबानी करा ब्लॉक वाले हर कुन करा अपील वन मे दियो कमर 2-3 बनावान। लेकिन किसी ने कोई तहकीकात नहीं की, कोई कुछ नहीं किया है। जो भी आता है वो दाया बाया जाता है, हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। अब हमारी डिमांड है कि हमको मेहरबानी करके कुछ हेल्प कर दो कि जो हम कुछ बना सकते हैं इधर अपने बच्चों के लिए 2-4 कमरा। दरखास्त वारियाह फिर
गवर्नमेंटस बजरिए IOI केस लेखान पता जिट नम ये नम दिवान तमन नमन दिन गोस अत कर तुम महफूज नम हकदार से अमन दिवान कल IOI केस फार्म भरमिस दुखन वनुक तान वारिया लट गई ब्लाकन पे वरमुल किल तहसीलदारस निश वारिया लट कोरुक न कह गोर मे नी बच त खानदार तुम सत गोर करा कह। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए मरकजी स्कीम अर्बन मिशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तहत महकमे एनिमल हस्बेंड्री डायरी फार्म फराहम कर रहा है। इस सिलसिले में खमरियाल कुपवाड़ा को महकमे ने मरकजी स्कीम के दायरे में लाया। लोगों को 80 गायें फराहम की गई हैं। दीगर जरूरी साजो सामान भी फराहम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर के हमरा इसका इफ्तिताह किया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इनको अच्छे एनिमल्स दिए जाते हैं तो इससे कई गुना जो है इनकी इनकम जो है बढ़ सकती है और ये सेल्फ डिपेंडेंट हमारे ये जो कई फैमिलीज बन जाएंगे। और लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमें अर्बन मिशन में खुमरियाल क्लस्टर में सभी लोगों की जो BPL जुमरे में है सभी लोगों की आमदनी जो है सालाना 1 लाख से ऊपर करने का जो हदफ है वो हमें दिया गया है और उसमें हमारा काम चल रहा है। प्रॉपर जो एज पर देयर स्पेसिफिकेशंस एक प्रोक्योरमेंट कमेटी हमने यहाँ पे बनाई है तो प्रोक्योरमेंट कमेटी की उनकी निगहदाश्त में और उनकी एडवाइस पे ये यहाँ पे एनिमल्स को सिलेक्ट करें और जो पैदावारी सलाहियत में बहुत अच्छी खूबी रखता हो एनिमल्स उसको प्रॉपरली सिलेक्ट करके वो अपने मवेशी को एस्टेब्लिश करे अपनी यूनिट को। 2-3 साल जो एबनॉर्मल कंडीशंस रही है हमारा इनके साथ कोई लेन देन नहीं रहा डिपार्टमेंट के साथ। हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं कि अभी हमारे पास इतनी फैमिलियां बाकी हैं जिनको इसका फ़ायदा अभी पूरा नहीं मिला है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में सयाहती मकाम गुलमर्ग में फौज की जानिब से 3 रोज़ा गुलमर्ग फेस्टिवल 2022 के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यह फेस्टिवल 4 मार्च से 6 मार्च तक जारी रहेगा। मशहूर अदाकार वेदित जम्वाल, अदाकारा नीलम कोठारी, अदाकार व हिदायतकार समीर सोनी के अलावा मुतादिद कश्मीरी गुलकार इस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। बॉलीवुड अदाकारों व हिदायतकारों ने वीडियो पैगामात में लोगों से गुजारिश की है कि वो गुलमर्ग में गानों, रक्स, सरमाई खेलों और म्यूजिक के प्रोग्रामों में भी भरपूर शिरकत करें। फौज के ज़ेर एहतमाम गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में हिस्सा लें। Hi everyone, this is Neelam Kothari Soni and I'm super excited that the Indian Army is organizing the Gulmarg Fest from 4th to 6th March. There's going to be music, winter sports and lots of entertainment. I'm going to be there with my husband Samir and looking forward to seeing you all too on the 4th, 5th and 6th of March. See you. Hi, this is Samir Soni. Join me and my wife Neelam for a weekend full of music, singing, dancing, winter sports and loads of fun at the Gulmarg Winter Festival organized by the Great Indian Army. From March 4th to March 6th, we'll be there. Look forward to seeing you. लद्दाख में बुद्ध मजहब का मशहूर फेस्टिवल 2 मार्च काफ़ी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वबाई बीमारियों, कुदरती आफात, जंग व दीगर मुश्किलात से बचने के लिए इस रोज़ ख़ास दुआ होती है। लोगों के बीच आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए भी खुसूसी पूजा होती है। इस पूजा में ऐसी तमाम शैतानी ताकतों को ख़त्म करने के लिए दुआ की जाती है जिनसे दुनिया को ख़तरा लाहक होता है। लेकिन तारीखी महल से लामा पूजा और मास्क नाच के साथ सैकड़ों लोग बाजार से होते हुए जुलूस निकालते हैं। इस फेस्टिवल के देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सयाह भी पहुंचते हैं। हमारे लामा जी हर एक कोई भी जो हमारे मंदिर का जो लामा जी जो मनाते हैं जिस इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनको 2 दिनों का एक बड़े स्तर पर एक पूजा होते हैं। तो 2 दिनों की पूजा के बाद फिर कल जो तोरमा जो जिनको अग्नि में एक सोआ किया जाता है तो वहाँ पे लामा जी अपने मन से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और जितना भी देवी देवता है उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति रहे, भूत प्रेत और महामारी का ये दौर ना चले। लेह में वाक़ दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड खरदुंगला पास पर साइकिल एक्सपीडिशन मुनक्किद की गई। आसाम मॉनिटरिंग एसोसिएशन की एक टीम ने एल्टीट्यूड एडवेंचर के ताउन से खरदुंगला पास पर साइकिलिंग की। LHDC के डिप्टी CEC सिरिंग एंगचुक ने 4 रुकनी टीम को झंडी दिखाई थी।
टीम ने कामयाबी के साथ अपना सफर मुकम्मल किया। होते रहता है, लेकिन विंटर या थोड़ा एक्सेप्शनल नहीं करता है आदमी लोग, तो विंटर में भी साइकिल एक्सपीडिशन हो सकता है। ये मकसद हम लोग का यही है कि विंटर में और टूरिस्ट आए और साइकिल एक्सपीडिशन या ऐसे कुछ एक्टिविटी करे, तो लद्दाख का जो टूरिज्म है वो भी डेवलप होगा, इंडिया टूरिज्म भी डेवलप होगा। यही मोटो लेके चल रहा है कि लेह लद्दाख में थोड़ा एडवेंचर की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा वो हम कंट्रीब्यूट कर सके। स्पेशली मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल ज़्यादातर ये मोबाइल और ये ड्रग्स में वो ज़्यादा वो हो रहा है, इसलिए ज़्यादातर जो हमारा यूथ है उनको भी एडवेंचर में आना चाहिए। IDPP की जानिब से लेह में आइस वॉल क्लाइंबिंग मुकाबले मुनक्किद किए गए। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। रुकन पार्लियामेंट ने NWFTR की काविशों को सराहा और खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। NWFTR ITBP की टीम ने चैंपियनशिप जीती। सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने VDC मेंबरान के दिरीन मसाइल को हल करने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। इनके अंदर जितने भी कमेटी मेंबर्स होंगे इन्हें विलेज डिफेंस गार्ड्स कहा जाएगा। एक परमानेंट फोर्स के नाते जिस प्रकार से होम गार्ड्स है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्स है, इस प्रकार से ये भी एक फोर्स बनेगी और इनका सैलरी हेड क्रिएट किया गया। इनकी सैलरी डायरेक्ट इनके अकाउंट में आएगी। अभी किसी SPO के महतेत नहीं रहना पड़ेगा। जो पेड और अनपेड थी, पेड वालों को अभी सैलरी मिलेगी और अनपेड के लिए भी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इनका भी प्रपोजल तैयार करके लाया जाए। पुंछ का एक तालिबे इल्म साहिब शर्मा यूक्रेन में फंसा हुआ है। तालिबे इल्म के वालिद संजीव कुमार का कहना है कि वो अपने बेटे की सलामती को लेकर फिक्रमंद हैं। संजीव कुमार के मुताबिक उनकी कल बेटे से बात हुई थी और उसने सरहद की तरफ जाने की बात की थी। संजीव कुमार ने हुकूमत से अपील की कि उनके बेटे की बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया जाए। जब से एयरफोर्स इन्वॉल्व हुई है, हमें ये है कि अब मेरा बेटा जल्दी से जल्दी इंडिया में पहुंच जाएगा। और जो कल से एक लड़के की डेथ भी हो गई है, उससे हम ज़्यादा परेशान हो गए। बाकी आपकी बात कब से नहीं हुई उसके? मेरी बात कल से मेरी बात नहीं हुई मेरे बेटे से। जब बात उसने क्या कहा कि किस तरह की परेशानी है उनको? उसने बोला कि तो गोलाबारी बहुत हो रहा है, इधर से जाने की परेशानी है। लेकिन कल से कुछ मोदी साहब ने किया हुआ है, कल से वो जा रहे हैं, दूसरे बॉर्डर पर जा रहे हैं। हो सकता है आज या कल तक वो इंडिया में पहुंच जाए। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रजिस्टर्ड छाबड़ी फरोशों की बाज़ाबतकारी की गर्ज से अनंतनाग में आलो नामी एक मार्केट शुरू किया जा रहा है। मार्केट का संग बुनियाद म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने दीगर मुताल्लिकीन के हमरा रखा। शाह के मुताबिक यह मार्केट जनूब कश्मीर में अपनी नौइयत का पहला बाजार होगा। इससे कबल हिलाल शाह ने खुसूसी सैनिटेशन मुहिम का भी आगाज किया। आने वाले वक्त में आप फिर देखेंगे और भी संग बुनियाद हमने डालने हैं, चाहे एक वेंडिंग मार्केट जनरल बस स्टैंड में है, चाहे जंगलात मंडी में है, या और भी कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स FC ग्रांट में यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, और इन बिलखुसूस जो ये गरीब तबके के रेडे वाले हजरात हैं, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी जो है इज्जत से जी ले, वही हमारा मकसद है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा जफर अहमद शाल की सदारत में टाउन हॉल अवंतीपुरा में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। महकमा हेल्थ और महकमा उमूर सार्फिन के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। सप्लाई अफसर फारूक अहमद ने गोल्डन कार्ड की अहमियत को उजागर किया। CSS सेंटर चलाने वाले अफराद से लोगों में गोल्डन कार्ड की अहमियत और ज़रूरत उजागर करने पर जोर दिया गया। गुरेज में फौज की जानिब से स्नो आर्ट मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस मुकाबले में गुरेज के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 28 बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने बर्फ़ से मुख्तलिफ किस्म के मुजस्समे बनाए। सख्त ठंड और बर्फबारी के बावजूद बच्चों ने इस मुकाबले में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। मुकाबले के अख्तिताम पर बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। बच्चों ने फौज का शुक्रिया अदा किया।
बनाया यहाँ पर सोने के लिए, और यहाँ पर बनाया है हमने खाना पकाने के लिए, और ये गाड़ी बनाई हमने घूमने के लिए, और ये मस्जिद बनाया हम नमाज पढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने होटल बनाया है, इसमें हम चाय पियेंगे और इंजॉय करेंगे। वहाँ पर हमने बनाया है स्नोमैन जो अच्छे दिखते हैं, और वहाँ पर गैस रखा है फौज की जानब से। हमने बहुत इंजॉय किया है यहाँ पर, हम बहुत खुश हैं। आज हमने यहाँ पर स्नो कंपटीशन किया और तमाम बच्चों ने यहाँ पर आकर एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें। ग्रेस यहाँ पर ये बर्फ़ से हमने बनाया, ये स्नोमैन बनाया है, बहुत अच्छा लगा हमें। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दयालगाम अनंतनाग में 10वीं जमात के इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से असनाद से नवाजा गया। स्कूल प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद, DEPO अनंतनाग व दीगर मुताल्लिकीन मौजूद रहे। कोविड के बावजूद बोर्ड इम्तिहानात में सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी की सताइश की गई। सरकारी स्कूलों में तालीमी मयार को बेहतर बनाने में असातिज़ा के रोल की सराहना की गई। म्यूनसिपल काउंसिल बडगाम की जानिब से स्वच्छता मुहिम के तहत टाउन में सफाई मुहिम शुरू की गई। टाउन के आसपास गंदगी को साफ किया गया। ड्रेन, नालों और गली कूचों की सफाई की जाएगी। म्यूनसिपल काउंसिल बडगाम के सदर मेराजुद्दीन ने लोगों से अपील की कि वो उनके साथ ताउन करें। म्यूनसिपल कमेटी अविंदपुरा की जानिब से स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई मुहिम चलाई गई। इलाके की गली कूचों और दरिया जहलम के दोनों किनारों पर सफाई सुथराई का काम अंजाम दिया गया। मुहिम में म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन बिलाल अहमद, एग्जीक्यूटिव अफसर मुश्ताक अहमद और सैनिटेशन अफसर मंजूर अहमद पामपुरी मौजूद रहे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना की निगरानी में म्यूनसिपल कमेटी त्राल ने मेगा सैनिटेशन मुहिम का एहतमाम किया। ADC दफ्तर से बस स्टैंड तक सड़कों की सफाई सुथराई अंजाम दी गई। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मंजूर अहमद खान, एग्जीक्यूटिव अफसर मंजूर अहमद और दीगर दूसरे ओहदेदार भी मौजूद रहे। बैन सिंगल यूज प्लास्टिक मुहिम के तहत म्यूनसिपल कमेटी काजीगुंड अनंतनाग ने एक मुहिम का आगाज किया। कमेटी के नायब सदर मीर जमीर अहमद व दीगर मुताल्लिकीन की क़यादत में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की गर्ज से बेदारी मुहिम चलाई गई। काजीगुंड के मुख्तलिफ बाजारों में सफाई सुथराई अंजाम देने के अलावा पॉलीथीन को भी भारी मकदार में जब्त कर लिया गया। म्यूनसिपल काउंसिल शुपिया ने हफ्ता तवील स्वच्छता ही सेवा का इनेकाद किया। काउंसिल के मुलाजमीन और रजाकारों ने मुख्तलिफ मकामात पर सफाई मुहिम चलाई। इस दौरान कई जगहों पर कचरा साफ किया गया। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जिला अनंतनाग के खोरीपुरा, सागाम और अचबल ब्लॉकों में ब्लॉक दिवस का एहतमाम हुआ। मटन में DC अनंतनाग डॉक्टर पीयूष इंगला ने ब्लॉक दिवस का इफ्तिताह किया। आवामी वफूद से मुलाकात करके उनके मसाइल से वक्फियत हासिल की गई। म्यूनसिपल कमेटी मटन व ब्लॉक में जारी तामीराती कामों का भी जायजा लिया गया। DC ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मटन और PHC का भी मुआयना किया। म्यूनसिपल काउंसिल गुलगाम ने आज कस्बा गुलगाम में गैर कानूनी तरीके से खड़े किए गए नाजायज तजावजात को मुनहदम करने की मुहिम शुरू की। काउंसिल के सदर और एग्जीक्यूटिव अफसर की हिदायत पर म्यूनसिपल काउंसिल ने चोलगांव अस्पताल रोड और दीगर मकामात पर